Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYGC SP, that is secretarial practice, and in our today's video students, we are going to discuss about basic concept of SP. As you can see in your textbook, there are total 12 chapters. So right from first chapter to 12 chapters, जो basics उसमें दिया हुआ है, today we are going to discuss. And once you understand this basic concept, then you will be able to understand the all chapters right from chapter number 1 to 12th chapter. You will be able to understand once you understand this concept. All right, so today we are going to talk about this concept. So let's start now. First, let's see what we have learned in our FYGC SP. So as you can see here, if you talk about your FYGC SP, so in FYGC SP you have learned about the secretary. Okay, and the word secretary come from the Latin term secretarius, which means to keep secret. And also we have learned about types of secretary. In types of secretary, we have learned about personal secretary, company secretary, government secretary, individual secretary, and many more. And also we have learned about importance of secretary and many works performed by the secretary. Alright, and apart from this, we have also learned the forms of business organization, as you can see. So in forms of business organization, we have learned about sole trading concern. Now what is sole trading concern? When single person own, manage and control the business activities, that business will be called as sole trading concern, right? And in partnership form, what we have learned when when two or more person come together, they own business, manage the business, that business can be called as partnership firm. All right, and then we have learned about joint Hindu family business. In joint Hindu family business, we have learned about that karta. Okay, we have learned about the karta, that means karta is the owner of the business. Then also we have learned about co-partners. Partners means what? Members of the company. All right, and then members of the family. Okay, co-partner means what? Members of the family. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. Then we have learned about the limited liability partnership, then cooperative society, and one of the most important thing which we have learned in our FYGC SP, that is joint stock company. All right, why? Because in your SYGC SP, whatever you are going to learn about joint stock company. That means how you can form joint stock company, how joint stock company raise their funds from different sources. All such things we are going to learn. Joint stock company basically इनका जो मनी का रिक्वायरमेंट होता है, उस मनी के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, टू फुलफ़िल दोज रिक्वायरमेंट्स, दे रेज मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. अलग अलग तरह से ये लोग बिज़नेस में पैसा लेकर आते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी बिज़नेस में किस तरह से पैसा लेकर आती है, यही सारी चीज़ें हम 12th के SP में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो राइट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू 12 चैप्टर्स, आप जितनी भी चीज़ें पढ़ने वाले हो, आप यही पढ़ोगे कि एक कंपनी है और कंपनी किस तरीके से फ़ंड रेज करती है, बिज़नेस में किस तरीके से उसके पैसे आता है. ओके, चलो. सो as you can see here, first we are going to learn about the sources of funds. Now what is sources of fund? Sources of funds का मतलब होता है पैसे आने का रास्ता, कोई ऐसा वे जिससे आपके पास पैसा है. Now if I ask very simple question कि what is your source of fund? Suppose if you want to pay your college fees, if you want to pay your classes fees, if you want to buy any mobile phone, if you want to buy clothes, if you want to बाय एनी फूड, सो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? राइट नाउ यू ऑल आर स्टूडेंट्स, सो आपका जो बेसिक सोर्स होगा वो होंगे आपके पेरेंट्स. राइट, यू कैन गेट द मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स. ओके, बट व्हेन यू टॉक अबाउट कंपनी सोर्स ऑफ फंड, सो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सा कोड आपके लिए प्रिपेयर किया है. ये कोड आपके एग्ज़ाम में आपको लिखना नहीं है, लेकिन इस कोड की हेल्प से आप SP में राइट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 12 जितनी भी चीज़ें पढ़ने वाले हो, वॉट एवर यू आर गोइंग टू लर्न इन SP, इन SYGC SP, वो इसका ही बेस्ड है. दैट मीन्स अगर ये आप कोड का मतलब समझ जाते हो, तो आपको समझ लो कि SYGC SP में जितने भी चैप्टर्स है, वो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी. ओके, सो इसके लिए मैं आपसे आपको बोलूँगा कि आप लोग इस चैप्टर का, इस बेसिक्स का नोट्स प्रिपेयर करो और इसको आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ो, इसका कंसेप्ट समझो,
जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एक बार आप इसका कंसेप्ट समझ जाओगे, उसके बाद में जैसे ही आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। ये इसके लिए बिकॉज कंसेप्ट समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट तो आपको यहाँ पे रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी एंड आप अपने ओन वर्ड्स में आंसर्स को लिख सकते हो। ओके, चलो सो लेट्स स्टार्ट नाउ। So very simple question, what is your source of fund? Is your parents. But when you talk about company source of fund, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, कंपनी का सोर्स ऑफ फंड जो होता है वो होता है SRDP LLB। ओके, सो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। जब भी मैं आगे के लेक्चर्स में आपसे पूछूंगा व्हाट इज़ कंपनी सोर्स ऑफ फंड, सो यू शुड रिप्लाई SRDP LLB। आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि SRDP LLB इज़ द सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द कंपनी। ओके, अभी SRDP LLB ये हमारा कोड है। अब ये इस कोड को हम लोग समझते हैं और इसी कोड में हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है SP का वो छुपा हुआ है और उसी को हम लोग सीखने वाले हैं। ऑलराइट, चलो सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले SRDP LLB में SRDP LLB क्या है? सोर्सेज ऑफ फंड। सो अगर मैं अभी आपसे पूछूँ व्हाट इज़ S, सो आप लोग बोलोगे यहाँ पे लिखा है S का मतलब होता है शेयर्स। ओके, S मीन्स व्हाट? शेयर्स। R मीन्स व्हाट? रिजर्व। D मीन्स डिबेंचर्स। P मीन्स पब्लिक डिपॉजिट। फर्स्ट L दैट इज लोन फ्रॉम बैंक, सेकेंड L दैट इज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड B मीन्स बॉन्ड्स। ओके, सो if I ask what is S, what is shares, so you know that it's a sources of funds. What is reserve? It's a sources of funds, right? What is debenture? Sources of funds. What is public deposit? Sources of funds. What is loan from bank? Sources of funds. What is loan from financial institutions? Sources of funds. What is bonds? Sources of funds. ओके, तो पहला लाइन आपका क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपका शेयर्स पे बेस्ड होगा, रिजर्व्स पे हो सकता है, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बॉन्ड्स। सो सब में पहला लाइन जो आपका होगा इंट्रोडक्शन का वो कॉमन होगा। ओके, सपोज आपको शेयर्स के बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सो हाउ यू कैन राइट शेयर इज ए सोर्सेज ऑफ फंड। ओके, रिजर्व के बारे में पूछेगा तो पहला लाइन होगा रिजर्व इज ए सोर्सेज ऑफ फंड। मतलब ये कि वेन एवर कंपनी रिक्वायर्ड फंड कंपनी कैन इशू शेयर्स। सो शेयर इशू करने के बाद में आपको क्या मिलेगा? एज अ कंपनी आपको पैसा मिलेगा। ओके, चलो सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे शेयर्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत, और डिबेंचर क्या होता है। ओके, ये दो वर्ड का मतलब सीखेंगे, उसके बाद में आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी बिकॉज सारी चीज़ें सिमिलर है। SP का मेन USP यही है कि आपको ये इजीली समझ में आएगा बिकॉज आप अगर शेयर समझ जाते हो, आप अगर डिबेंचर समझ जाते हो तो आपको बाकी की सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी बिकॉज एक दूसरे पे सारी चीज़ें डिपेंड है और सिमिलर है। ओके, तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग के शेयर होता क्या है। यहाँ पे दो तरीके से मैंने लिखा हुआ है, हिंदी में भी है और साथ में इंग्लिश में भी है। फर्स्ट वी विल सी कि हिंदी में क्या दिया हुआ है। पहले हम लोग शेयर का मतलब क्या होता है, ये वर्ड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, चलो सो शेयर क्या होता है। सो शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। शेयर का मतलब हिस्सेदारी। आप कुछ पैसे देकर, मतलब आप इन्वेस्टर हो, सपोज़ आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और आपके पास एक्स्ट्रा मनी रखा हुआ है, आपका एक्सपेंसेस सब निकाल के, सपोज़ आप 50,000 रुपीज़ कमाते हो, 50 में से 20,000 आपका एक्सपेंस है, 30,000 बचता है आपके पास हर मंथ। ऐसे ही करते करते मान लो आपके पास 1 लाख रुपया रखा हुआ है। अब वो 1 लाख रुपया अब जो है आपके पास कुछ ऑप्शंस है। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है सबके पास, जो बैंक में जाके आप डिपॉजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, बट सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, आप किसी कंपनी में वो पैसे को इन्वेस्ट कर लो और उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाओ। और हिस्सेदारी का मतलब होता है आप उस कंपनी के कुछ शेयर्स को परचेज़ कर रहे हो। ओके, चलो सो आप कुछ पैसे देकर उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हो जाते हो। कुछ हिस्से के मालिक मतलब जितना आपने शेयर परचेज़ किया उतने हिस्से के मालिक आप बन जाओगे। कंपनी मुनाफा करती है मतलब प्रॉफिट कमाती है। कौन से पैसों से? जो आपने इन्वेस्ट किया उस पैसों से कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो मालिक को फ़ायदा मिलेगा। अब ये मालिक कौन है? मालिक मतलब शेयर होल्डर।
अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा, आपने शेयर परचेज किया होगा, दैट मीन्स यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे आपको बता दिया मालिक, मालिक मतलब ओनर। आप किसी भी कंपनी के शेयर को परचेज़ करते हो तो आप क्या बन जाओगे, उस कंपनी के ओनर बन जाओगे। ओनर मतलब ऐसा नहीं कि पूरी कंपनी आपकी हो जाएगी, जितना हिस्सा आपने परचेज़ किया, जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उस हिसाब से आप उस कंपनी के ओनर बनोगे। ओके, तो ये तो था हिंदी में। अब देखते हैं हम लोग इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है। नाउ व्हाट इज़ शेयर? शेयर इज़ ए स्मॉल यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब जितना कंपनी का शेयर का कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उस शेयर कैपिटल में से कुछ हिस्सा आप परचेज़ करते हो, कुछ शेयर्स लेते हो। से एग्जांपल, कंपनी के पास अगर 10,000 शेयर्स है, आपने 50 शेयर्स परचेज़ किया, तो 10,000 में से 50 शेयर्स सिर्फ आपने परचेज़ किया हुआ है, तो आप 50 शेयर्स के मालिक हो। ओके, when you purchase share of the company, then you will become the shareholder of the company, right? The person who purchased the share of the company, that person will become the shareholder of the company. When company earn profit, company give dividend to their shareholders. Okay, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, उस पैसे से कंपनी बिजनेस करेगी। बिजनेस करने के बाद में कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी एज डिविडेंड will distribute to you. To you means what? Shareholders, because you are the shareholder of the company. आपने कंपनी को पैसा दिया है, तो उसके बदले में कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है। ऑल राइट, वेरी सिंपल। आई होप आपको शेयर का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। शेयर के बाद में हम लोग और चीज़ें देखेंगे। पहले हम लोग शेयर्स के बारे में डिटेल में थोड़ा सीख लेते हैं, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी फर्स्ट वर्ड आपको हमेशा याद होना चाहिए। शेयर क्या है? शेयर इज़ ए sources of funds. Okay, share is a sources of funds. Okay, basically there are two types of shares. दो टाइप्स के शेयर्स ही होते हैं। फर्स्ट दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, टू टाइप्स के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर क्या है? सोर्सेज ऑफ फंड। सो इक्विटी शेयर्स क्या होगा? इक्विटी शेयर्स इज ऑल्सो अ सोर्सेज ऑफ फंड्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर्स इज ऑल्सो अ सोर्सेज ऑफ फंड्स। वेरी क्लियर। चलो, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इक्विटी शेयर्स। ओके, सो इक्विटी शेयर इज अ सोर्सेज ऑफ फंड। व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड फंड, कंपनी इशू शेयर्स। जब भी कंपनी को पैसों की ज़रूरत होगी, कंपनी शेयर इशू करेगी। एंड द पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। आपने अगर किसी कंपनी के इक्विटी शेयर को परचेज़ किया, देन यू विल बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अगर आपने किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को परचेज़ किया, देन यू विल बिकम द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, राइट। तो चलो, यहाँ पे आपका प्रेफरेंस शेयर्स आएगा, वो बाय मिस्टेक वहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। फाइन, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इक्विटी शेयर्स। सो व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड फंड, कंपनी इशू shares. The person who purchase the equity share of the company, that person will become the equity shareholder of the company. Equity shareholders are the owners of the company. Okay, अगर आपने इन्वेस्ट किया, इक्विटी शेयर परचेज किया, then you will also become the owner of the company, right? Equity shareholders are the owners of the company on behalf of their investment. मतलब जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया, इन्वेस्ट किया, उस पैसे के बदले में कंपनी अर्न प्रॉफिट and company distribute the profit to the equity shareholders in a form of dividend, and the dividend of equity shareholder is fluctuating rate of dividend. Now what is the meaning of fluctuating rate of dividend? Fluctuating rate of dividend का मतलब होता है as per the profit and loss of the company. If company earn high amount of profit, company will distribute high amount of dividend to the equity shareholders. If company earn less amount of profit, company will distribute less amount of profit to the equity shareholders. In case if company occurred loss, अगर कंपनी को लॉस होता है, तो जो इक्विटी शेयर्स होंगे, इनको वो लॉस भी बेयर करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट। इतना समझ में आया? आगे देखेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज़ वाई दे कैन पार्टिसिपेट एंड दे एंजॉय द वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स मतलब क्या? कंपनी कोई भी डिसीजन लेने वाली होगी, सो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पूछेगी। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होंगे वो यस बोलेंगे या फिर नो बोलेंगे। यस या फिर नो, ये आपको पावर मिल रहा है बोलने का।
इसी को बोलते हैं वोटिंग राइट्स. ओके, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स enjoy the voting rights even they can participate in the management of the company. ओके, ये है मैनेजमेंट आपका. मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है बिकॉज ज़्यादा स्पेस नहीं था. अंडरस्टूड. तो मैनेजमेंट, और ये है आपका वोटिंग राइट्स. तो मैंने शॉर्टकट में वी आर लिखा हुआ है. फाइन, अंडरस्टूड. सो एक बार फिर से रिपीट करूँगा, जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उस वर्ड्स का आप नोट्स प्रिपेयर करो और उसको याद करो, और वही चीज़ आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में. ओके, इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा. यहाँ पे जब आगे जाके हम लोग चैप्टर नंबर 2 में इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको फीचर्स में भी काम आएगा. ऐसे बहुत जगहों पे ये आपको काम आने वाला है. इसके लिए मैंने आपको बताया कि राइट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 12 ये बेसिक्स आपके काम आने वाला है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक्स. फिर भी आपको कुछ भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आती है, देन यू कैन आस्क मी. ऑलराइट, चलो. सो एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग. Equity share is a source of fund for the company. When company required fund, company issue equity shares. The person who purchase the equity share, that person will be called as equity shareholder. Equity shareholders are the owners of the company. On behalf of their investment, they receive profit in a form of dividend, and the dividend of equity shareholder is fluctuating rate of dividend. Okay, fluctuating मतलब कम ज़्यादा होना. Okay, equity shareholders are the owners of the company. That is why they enjoy the voting rights and even they can participate in the management of the company. Alright, चलो. ये पार्ट आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जैसे ही हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे वहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आते जाएगी और चीज़ें क्लियर होते जाएगी. Alright, चलो. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ व्हाट इज़ प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स इज ए सोर्सेस ऑफ फंड. वेरी सिंपल. पहला वर्ड, इक्विटी शेयर्स में भी वही होगा और प्रेफरेंस शेयर्स में भी वही होगा, बिकॉज ये दोनों ही क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स है. ओके, आगे बढ़ेंगे. व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड फंड, कंपनी इशू प्रेफरेंस शेयर्स. द पर्सन हु परचेज द प्रेफरेंस शेयर्स, दैट पर्सन विल बिकम द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. ओके, ये क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द को ओनर्स ऑफ द कंपनी. को ओनर्स means what? They are not the real owners of the company. They are the co-owners of the company, right? चलो. On behalf of the investment, company distribute profit to the preference shareholders, or company give the profit to the preference shareholders in a form of dividend. Okay, जैसे इक्विटी शेयरहोल्डर्स को प्रॉफिट मिला इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन अ सेम वे कंपनी इज ऑल्सो गिविंग द डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स. बट when you talk about dividend of preference shareholders, it's fixed. Okay, that means whether company earn profit or company incurred loss, preference shareholders just require their fixed rate of dividend. Okay, so यही फ़र्क है इक्विटी शेयरहोल्डर्स में. पहला फ़र्क ये है कि इक्विटी शेयरहोल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स आर द को ओनर्स ऑफ द कंपनी. पहला, प्रॉफिट मिलता है, इनको भी प्रॉफिट मिलता है इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड. बट इफ़ यू टॉक अबाउट इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड, देयर डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड. बट व्हेन यू टॉक अबाउट डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सो इट इज़ फिक्स्ड. ओके, यहाँ पे कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स विल रिसीव मोर डिविडेंड. इफ़ कंपनी अर्न लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स को लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा. इन केस कंपनी को लॉस होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी लॉस बेयर करना पड़ेगा. वाई? बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ में ये केस नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द को ओनर्स ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तभी भी इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को लॉस हुआ तब भी इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा. इन केस इफ़ कंपनी अकर्ड लॉस, इन सच केस तभी भी इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा. Very clear? Now, they are the co-owners of the company. That is why they does not enjoy the voting rights. Even they can't participate in the management of the company. Why? Because they are not the real owners of the company. यहाँ पे सिर्फ वोटिंग राइट्स और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन किसको मिला? टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये राइट नहीं मिलता है, ये आपको याद रखना है. वेरी क्लियर? सो आई होप आपको इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स ये दोनों का ही कंसेप्ट समझ में आया होगा. अब हम आगे बढ़ेंगे.
चलो अब हम लोग देखते हैं रिजर्व्स। हमारा SRDP LLB का था, SRDP LLB, इसमें से हमने शेयर्स सीख लिया। 2 टाइप्स के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। अब हम लोग बात करते हैं R की, दैट इज़ रिजर्व्स। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ रिजर्व्स? रिजर्व इज़ ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच कंपनी कीप्स असाइड फॉर फ्यूचर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स रिजर्व वो पैसा होता है, वो हिस्सा होता है प्रॉफिट का जो कंपनी साइड में रख देती है, साइड में निकाल के रख देती है। क्यों रखती है साइड में उस प्रॉफिट को? कंपनी एक बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए, बिज़नेस को मॉडर्नाइज करने के लिए। वेन एवर यू रिक्वायर्ड मनी यू कैन यूज़ योर रिजर्व्स। समझ में आया? वेरी सिंपल। अगेन आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। से एग्जाम्पल, इफ़ कंपनी ए, एक कंपनी ए है, उसका टोटल जो अर्निंग है 1 लाख रुपया हुआ है, उसमें से जितना भी एक्सपेंसेस, जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करना था पैसा, उसने पूरा 90,000 में पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसके पास भी जो बचा है वो, अब लास्ट में एक्स्ट्रा अमाउंट कितना बचा हुआ है अभी? 10,000। अब ये जो 10,000 रुपीज़ है कंपनी इसको खर्चा नहीं करेगी। इस पैसे को कंपनी उठा के कहाँ पे रखेगी? अकाउंट में, जिसको कंपनी बोलती है रिज़र्व अकाउंट। उस रिज़र्व अकाउंट में ये पैसा रहेगा और कोई भी इसको यूज़ नहीं करेगा। कंपनी को जब भी बिज़नेस को एक्सपांड करना है या फिर नया मशीन परचेज करना है, दैट मीन्स मॉडर्नाइज करना है, फॉर दैट पर्पस कंपनी कैन यूज़ देयर रिजर्व्स। वेरी सिंपल। रिज़र्व का मतलब, एक और एग्जांपल लेते हैं रिजर्व्स के लिए। आपके घर में जब भी पानी आता है, ओके, तो आप इतना पानी भरते हो कि इन केस कभी कल पानी नहीं आएगा घर में, तो भी जो पानी आपने ऑलरेडी भर के रखा हुआ है वो आपका यूज़ हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने पहले से ही आज ही क्या किया हुआ है, आने वाले कल का पानी रिज़र्व करके रखा हुआ है। उसी तरीके से कंपनी प्रॉफिट के भी कुछ हिस्से को रिज़र्व करके रखती है। ऑलराइट, चलो आई होप आपको शेयर्स क्या होता है एंड रिजर्व्स क्या होता है ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी। बट इन केस इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन अगेन, एंड आई विल अगेन प्रिपेयर वन वीडियो एंड आई विल टेल यू। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स को स्टार्ट करने से पहले डिबेंचर्स क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे, उसके बाद में हम लोग डिबेंचर्स की बात करेंगे। ओके, मतलब जो आपके आंसर्स है उसकी बात करेंगे। सो व्हाट इज़ डिबेंचर? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड कि डिबेंचर्स होता क्या है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं। ओके, सो द वर्ड डिबेंचर कम फ्रॉम द लैटिन टर्म डीबेर। ओके, और डीबेर का मतलब होता है विच मीन्स टू ओ समथिंग टू समवन। टू ओ समथिंग टू समवन, किसी को कुछ उधारी पे देना। उधारी मतलब आज दे रहे हो तो कल आप उसको वापस भी करना पड़ेगा। ओके, सो ओ का मतलब होता है कि उधारी पे आप कुछ दे रहे हो। डिबेंचर आर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, डेप्ट मतलब होता है कर्जा। ओके, सो डिबेंचर्स आर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय कंपनीज। यूज़ कौन करता है? कंपनी यूज़ करती है। एंड गवर्नमेंट टू इशू द लोन। ओके, तो डिबेंचर कौन से फॉर्म में होता है? लोन के फॉर्म में होता है। क्यों, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। द लोन इज़ इशूड टू कॉर्पोरेट बेस्ड ऑन देयर रेपुटेशन एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो डिबेंचर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है और ये एक तरीके का लोन होता है। क्यों? सपोज़ मान लो आपने किसी बैंक से जाके लोन लिया, तो वहाँ पे आपको जो पीरियड होगा, ओके, जो टाइम पीरियड होगा वो आपको वहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दैट मीन्स इफ़ यू नीड 1 लाख रुपीज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और 3 years और 5 years, से एग्जाम्पल 5 years, तो 5 years आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि मैं जो पैसा ले रहा हूँ ये 5 सालों के लिए है, एंड आफ्टर 5 years आई एम सपोज टू रीपे दिस अमाउंट। ओके, सो ये क्या है? कर्जा है आपके ऊपर, आपको ये पैसा देना है बैंक को वापस, और ऐसे ही पैसे को कौन सा पैसा बोलते हैं? डेब्ट फंड। वेरी क्लियर। चलो, सो अभी आपको याद क्या रखना है? डिबेंचर इज द सोर्सेज ऑफ फंड, सबसे पहली चीज़। ओके, डिबेंचर का मतलब क्या होता है? टू ओ समथिंग टू समवन, किसी को कुछ उधारी पे देना। और डिबेंचर क्या है? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। ओके, कर्जे वाला पैसा है। बिकॉज ये कर्जे वाला पैसा इसके लिए है बिकॉज
वो पैसा वापस करना होता है कंपनी को। सपोज़ मैं कंपनी हूँ, मुझको पैसों की ज़रूरत है, मैंने डिबेंचर इशू किया, आपने अपना पैसा मुझे दिया और मेरे कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स बन गए। ओके, सो डिबेंचर होल्डर्स बनने के, आप अगर डिबेंचर होल्डर्स बन जाते हो, इसका मतलब ये कि मैंने कुछ आपसे पैसा लिया हुआ है और बदले में मैं आपको इंटरेस्ट पे करूँगा, और वो इंटरेस्ट कैसे होगा, फिक्स्ड होगा, और वो मुझे जब मैंने डिबेंचर इशू किया वही टाइम पे आपको बताना होगा कि फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मैं आपको देने वाला हूँ। क्लियर? तो चलो अब डिबेंचर्स के बारे में और डिटेल में हम लोग देखेंगे। सो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो तीनों चीज़ सिमिलर है, तीनों ही चीज़ सिमिलर है। डिबेंचर समझ में आ गया तो बॉन्ड और पब्लिक डिपॉजिट ईजिली समझ में आ जाएगा आपको। फाइन, चलो सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिबेंचर, सो फर्स्ट वर्ड आपको याद रखना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज़ डिबेंचर? डिबेंचर इज़ ए सोर्सेस ऑफ फंड्स। ओके, एंड अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, ये एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। इसके लिए आप और एक लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, डिबेंचर इज़ ए डेप्ट फंड। डेप्ट फंड मतलब उधारी वाला पैसा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड फंड, कंपनी इशू डिबेंचर्स, द पर्सन हु परचेज द डिबेंचर ऑफ द कंपनी, दैट पर्सन विल बिकम द डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी, एंड डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर्स का मतलब होता है कर्जदार। अगर आपने किसी से पैसा लिया, एज अ कंपनी आपने किसी से पैसा लिया, तो वो पर्सन क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, राइट? ओके, ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट दे रिसीव प्रॉफिट इन अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। जो डिबेंचर होल्डर्स होता है उनको प्रॉफिट मिलता है, बट कौन से फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है। ओके, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, सो इट इज़ फिक्स्ड। ओके, एंड they are the creditors of the company, not the owners of the company. That is why they does not enjoy the voting rights, even they can't participate in the management of the company. Very simple. Fine. अब हम लोग बात करते हैं bonds की. Now what is bonds? Bonds is a sources of funds. Bonds is a debt fund. ये भी कर्जे वाला पैसा होता है. ओके, चलो अब देखते हैं. When company required fund, company issue bonds. The person who purchased the bonds, that person will become the bond holder of the company. Bond holders are the creditors of the company. On behalf of the investment, they receive profit in a form of interest, and the interest of bond holder is fixed. जैसे इनका फिक्स्ड वैसे इनका फिक्स, इनको भी इंटरेस्ट, इनको भी इंटरेस्ट, प्रॉफिट में से ही मिलता है, प्रॉफिट में से ही मिलता है। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, इन अ सेम वे द बॉन्ड होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ओके, bond holders are the creditors of the company, that is why they does not enjoy the voting rights, even they can't participate in the management of the company. Same like debentures, सिर्फ नाम अलग है। they are the bond holders, they are the debenture holders. Very simple. चलो now let's talk about public deposit, that is P. तो हमारा S हो गया शेयर्स, R हो गया रिजर्व, D हो गया डिबेंचर्स, और B हो गया दैट इज़ बॉन्ड्स। मैंने पहले आपको समझा दिया बिकॉज दोनों क्या है, सिमिलर है। फाइन, तो ये हमारा कोड है जिसमें से S हो गया हमारा, R हो गया, D हो गया हमारा, B हो गया। वेरी क्लियर। अब हम लोग देखते हैं P, दैट इज़ पब्लिक डिपॉजिट यहाँ पे। सो व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड फंड, कंपनी इनवाइट पब्लिक, यहाँ पे खाली सेंटेंस जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, मीनिंग सेम है। व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड फंड, कंपनी इनवाइट पब्लिक टू इन्वेस्ट देयर मनी, ओके, एंड द पर्सन हु डिपॉजिट और द पर्सन हु इन्वेस्ट देयर मनी in a company, that person will become the depositors of the company. Depositors are the creditors of the company. On behalf of the investment, they receive profit in a form of interest, and the interest of depositor is fixed. Okay, depositors are the creditors of the company, that is why they does not enjoy the voting rights, even they can't participate in the management of the company. Okay, so same है. Okay, एंड बस एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, व्हेन यू टॉक अबाउट पब्लिक डिपॉजिट, तो पब्लिक डिपॉजिट में दो पीरियड इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट्स, दैट इज 6 months, दैट मीन्स कंपनी कैन टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 months, नॉट लेस देन 6 months, एंड मैक्सिमम 36 months। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमारा डिबेंचर्स भी फिनिश हुआ, बॉन्ड भी फिनिश हुआ, और पब्लिक डिपॉजिट भी फिनिश हो गया। ओके, पब्लिक डिपॉजिट भी हो गया एंड बॉन्ड्स भी हो गया। अब हमारा ये बचता है
डबल एल. फर्स्ट एल है दैट इज़ लोन फ्रॉम बैंक, सेकेंड एल दैट इज़ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओके, वेरी सिंपल. बैंक का मतलब होता है कि इफ़ यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, सो इन रिटर्न यू हैव टू रीपे द अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. आपको कुछ इंटरेस्ट भी पे करना होगा बैंक को. ओके, फिर देखते हैं हम लोग सेकेंड हैंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो वेन एवर यू रिक्वायर्ड मनी यू कैन टेक लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो. ओके, तो यहाँ पे भी आपको पैसा मिलेगा, यहाँ पे भी पैसा मिलेगा एज अ कंपनी. तो आपके लिए क्या बन गया ये दोनों सोर्सेस ऑफ फंड्स. वेरी सिंपल. तो ये था आपका SRDP का. S मीन्स शेयर्स, R मीन्स रिजर्व, D मीन्स डिबेंचर्स, P मीन्स पब्लिक डिपॉजिट, L मीन्स लोन फ्रॉम बैंक, सेकेंड L that is loan from financial institutions, and B means bonds. Alright, now as you can see there are total 12 chapters in your SP. फर्स्ट चैप्टर है आपका, अभी देखो जो हम लोगों ने पढ़ा SRDP LLB, उसको यहाँ पे हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो हमारे काम का है या नहीं है. फर्स्ट एज यू कैन सी फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट फाइनेंस. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट फाइनेंस. फाइनेंस मीन्स व्हाट? मनी. एंड कॉर्पोरेट मीन्स व्हाट? कंपनी. सो व्हेन यू टॉक अबाउट फाइनेंस, सो फाइनेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज बिजनेस में पैसा होगा तो ही बिजनेस चलेगा. इफ़ देर इज़ नो मनी इन द बिजनेस देन बिजनेस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. ओके, सो ये पैसा आएगा कहाँ से? अब पैसे का पहले हम बताएंगे पैसा का बहुत इंपॉर्टेंस है बिजनेस में. यस है, बट वो पैसे का रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होगा? वो होगा SRDP LLB से. कंपनी कैन इशू शेयर्स, कंपनी कैन यूज द रिजर्व, कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स, कंपनी कैन इन्वाइट पब्लिक, कंपनी कैन टेक लोन from the bank, company can take loan from financial institutions, and company can issue bonds. ओके, चलो. सो ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. फिर सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो हमने ये क्या पढ़ा है? ये सोर्सेज ऑफ फंड्स है. तो सेकेंड चैप्टर में भी हम लोग सेम चीज़ ही रिपीट करने वाले हैं. दैट इज़ वाई दिस SRDP LLB इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन इशू ऑफ शेयर्स. अगेन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द शेयर्स. सी हियर. देन वी विल लर्न अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर्स, दैट इज़ D. Then deposits. Deposit means what? Public deposit. ये वाला P. Then correspondence with members. Members means what? Shareholders of the company. तो यहाँ पे भी हमने पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में. यहाँ पे भी सेकेंड में भी पढ़ेंगे, थर्ड में भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे फिर से आपके पास आएगा. लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? करस्पॉन्डेंस. करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पेपर वर्क जो भी आप करते हो. तो शेयर होल्डर्स के साथ में आप किस तरीके से पेपर वर्क करोगे वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे. बेसिकली इन दिस चैप्टर नंबर 6 वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू राइट द लेटर. ओके, तो तीनों ही लेसन में क्या दिया है? लेटर. बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी. एक लेटर आप पढ़ोगे तो आपको सारे लेटर समझ में आएंगे. मैंने ऑलरेडी लेटर का फॉर्मेट आपके लिए अपलोड किया हुआ है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो. देन करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स. तो मेंबर्स कौन है? शेयर होल्डर्स. डिबेंचर होल्डर्स आपको पता है. डिपॉजिटर्स भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया. देन डिपॉजिटरी सिस्टम. डिपॉजिटरी सिस्टम में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ यू कैन कन्वर्ट योर फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी. जब हम लोग इस चैप्टर को करेंगे तो मैं आपको डिटेल में इसका इन्फॉर्मेशन दूंगा, और ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको देखो. आपको कुछ भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी. ओके, राइट. चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. हमको पता है डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को मिलता है. और इंटरेस्ट किसको मिलता है? डिबेंचर होल्डर्स और जितने भी बोरोड फंड वाले हैं उनको. डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा, पब्लिक डिपॉजिटर्स को मिलेगा, बॉन्ड होल्डर्स को मिलेगा. ओके, फाइन. फिर आता है फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी सिंपल चैप्टर. Basically there are two types of financial market. First you have to understand what is financial market. Financial market is a market where money transaction takes place, जहाँ पे पैसों का ट्रांजेक्शन होता है. फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है कैपिटल मार्केट, दूसरा होता है मनी मार्केट. एक होता है कैपिटल मार्केट एंड दूसरा होता है मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर मनी ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस फॉर मोर देन 1 ईयर. एक साल से ज़्यादा के लिए ट्रांजेक्शन होगा तो कैपिटल मार्केट, एक साल से कम के लिए होगा सो मनी मार्केट. व्हेन द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी टेकिंग प्लेस फॉर लेस देन 1 ईयर दैट इज़ कॉल्ड मनी मार्केट. वेरी सिंपल, वेरी क्लियर. नाउ लास्ट में हम लोग करने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर नंबर 12. सो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे. अभी इन दिस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज़
BSE, that is Bombay Stock Exchange, what is NSE, National Stock Exchange. These are the things which we are going to learn in chapter number 12. फाइन. सो हम लोगों ने बेसिक्स देखा. बेसिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार अगर नहीं समझ में आता है देन अगेन यू हैव टू वॉच, यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स. आप नोट्स बनाने के बाद में इसको पढ़ोगे सो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी. बेसिक्स देखने के बाद में ही आप लोग चैप्टर नंबर 1 पे जाओगे. अगर आपने ये वीडियो को अच्छे से देखा तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक के आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी बहुत ही ईजी तरह से. ओके. सो इस वीडियो को एक बार नहीं, जितनी बार आपके पास टाइम मिलेगा आप उतनी बार इसको वॉच देखो तो आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी. ऑलराइट. चलो. सो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे एंड आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन टेक केयर ऑल.